اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، دوسرے ہی روز زندگی تمہارے ہم قدم ہوگی۔ کل رات 11 بجے کے بعد تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے ICU کی گلاس وال کے پاس زندگی اور موت کی جنگ لڑتے اس شخص کو دیکھا جو اس کی محاورتن نہیں حقیقتاً زندگی تھا۔ زندگی اسے اس مقام تک لے آئے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ محبت کی اتنی بڑی اور کڑی سزا اس نے اپنی روح کو گھائل ہوتے محسوس کیا۔ ایک رات کی بات اس نے اس ظالم اور سفاک انسان کے کہے جملے کو دہرایا، پھر لمحہ با لمحہ زندگی سے دور جاتے اپنے محبوب کو نظر بھر کر دیکھا۔ کیا میں اس کے بغیر رہ پاؤں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب بڑی زوردار تردید کے ساتھ ملا۔ دھڑکنیں بے ہنگم انداز میں شور برپا کیے دے رہی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو کر بکھر گئی تھی، ٹانگوں میں لرزش واضح تھی، گویا خون کی ایک ایک بوند جسم سے نچوڑ لی گئی ہو۔ آپ کو خدا کا واسطہ صدیق بھائی، کچھ تو رحم کریں، آخر اعظم آپ کے بھائی ہیں۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گری گڑ گڑا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پاؤں پر دھرے اس کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے پرے ہٹایا۔ بھائی تھا، اب نہیں رہا۔ تمہیں اپنانے کے بعد اس نے خود ہی تعلق توڑ لیا تھا ہم سے۔ ان کا لہجہ بے حد شفاف تھا، کسی بھی قسم کی لچک کے بغیر، بے حد سنگ دل اور کٹھور لہجہ، رگ جان کو چیرتا، اس امید کو توڑتا لہجہ۔ زمر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں صدیق بھائی، ان کا آپریشن بے حد ضروری ہے، اگر ان کا آپریشن نہ کیا گیا تو وہ مر جائیں گے۔ وہ اس ظالم انسان کی بے حسی دیکھتے ہوئے ضبط کی شدت سے چلا اٹھی تھی، مگر وہاں ہنوز بے حسی بے اتنائی براجمان تھی۔ میرا گھر اجڑ جائے گا، میں اجڑ جاؤں گی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کریں، آپریشن کے لیے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کروں؟ وہ اب بھی ان کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ گریہ جاری کریں، اس کے لرزتے لب اور سر سے ڈھلکتا آنچل اس کا راز حسن عیاں کر گیا تھا۔ صدیق احمد نے ایک نظر روتی گڑ گڑاتی ہوئی اپنی بھاوج کو دیکھا، جس سے شادی کرنے کی ضد میں ان کے بھائی نے اپنوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج وہ انہی کے در پر انہی کے قدموں میں گڑ گڑاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ وہ اتنا لڑے تھے بھائی سے، کس کماش کی بیاہ کر لائے ہو اعظم، جس کے باپ کا نہ کچھ پتا نہ دھدیال کا۔ انہوں نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہیں خود سمجھنے کی کوشش کی تھی، مگر اعظم پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ زمر بہت اچھی اور خاندانی لڑکی ہے بھائی صاحب، انہوں نے اختصار سے کام لیتے ہوئے بہت سی باتیں انہیں جتا دی۔ کس خاندان کی؟ صدیق صاحب نے ایک ہنکارا بھرا تھا۔ اعظم لمحے بھر کو خاموش ہو گئے تھے۔ میں زمر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں بھائی صاحب، اور محبت خاندان، ذات، برادری کی قید سے آزاد ایک ماورائی جذبہ ہے، مجھے اس کے حسب نسب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اعظم کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا اور فیصلہ کن تھا۔ مگر ہمیں فرق پڑتا ہے، ہمارے لیے اس لڑکی کے خاندان کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے باپ سے ملنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دنیا والوں کو منہ دکھانا ہے، کیونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آخری الفاظ انہوں نے بے حد چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ اعظم بے حد ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ اس کا باپ لاپتہ ہے اور اس کی ماں نے ہی اس کی پرورش کی ہے۔ کہاں گیا ہے اس کا باپ اور باقی خاندان؟ دھدیال، ننیال، کیا وہ بھی لاپتہ ہو گئے ہیں؟ وہ تڑخے۔ ان کا اپنا دھدیال ننیال سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب کی بار اعظم کا سر جھک گیا تھا۔ واہ میاں، یہ بھی خوب کہی، ایک بات ہماری بھی سن لو، ہم ہرگز کسی ایسی لڑکی کو بیاہ کر نہیں لائیں گے جس کا باپ لاپتہ ہو اور ان کا اپنے خاندان والوں سے میل جول نہ ہو۔ ہمیں ایسے مشتبہ خاندان سے رشتہ داری منظور نہیں ہے، کیونکہ عشق کی پٹی تمہاری آنکھوں پر بندھی ہے، زمانے والوں کے نہیں۔ ان کے صفا چٹ جواب دینے کے باوجود بھی اعظم احمد نے ہار نہیں مانی تھی۔ صدیق احمد کی تعلق توڑنے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا، اور اعظم احمد نے کر دکھایا تھا۔ زمر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے، مگر اچانک ہونے والا شدید ایکسیڈنٹ انہیں موت کے دھانے پر کھڑا کر گیا تھا۔ اس کے جسم کا کافی خون بہہ چکا تھا، سر پر بھی شدید
चोट आई थी और उन्हें फौरी ऑपरेशन की जरूरत थी। जुमर के पास और तो कोई चारा नहीं था, जमा जो था वो तो अस्पताल लाने और इमरजेंसी में ही खर्च हो गया था। ऐसे में 1.5 लाख का फौरी इंतजाम वो कहाँ से करती। इसीलिए एक आखिरी उम्मीद पर वो अपने बड़े जेठ के पास आई थी। एक शर्त पर मैं तुम्हें अपने शोहर के इलाज के लिए रुपए दे सकता हूँ। अचानक उन्होंने उसके बेदाग हुस्न को गहरी नजरों से जांचते हुए कहा। जुमर ने बेसाख्ता अपना दुपट्टा अपने शानों पर दुरुस्त किया। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है भाई साहब। वो फौरी आमादा हो गई। सदीक अहमद ने उसे गहरी निगाह से देखा और कुछ सोचते हुए 1.5 लाख का चेक काट कर उसके सामने रख दिया। जुमर को उस कागज के टुकड़े में जिंदगी सांस लेती महसूस हुई। उसने लपक कर चेक उठाना चाहा पर सदीक अहमद ने उचक लिया। पहले शर्त तो सुन लो, उन्होंने उसे इतनी बेताबी दिखाने पर टोक दिया। जुमर लम्हे भर को किसी अजीब से एहसास के जेरे असर खामोश सी खड़ी रह गई। नजर उठाकर सदीक अहमद को देखा तो थरा कर रह गई, क्योंकि उनकी बोलती निगाहों में कई पैगाम रोशन नजर आ रहे थे। इस 1.5 लाख के इवज तुम्हें अपना कुछ कीमती वक्त मेरे साथ बिताना होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ चंद घंटों की तो बात है। यूँ समझो कि बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। आजम ऑपरेशन के बाद घर आ जाएगा। जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवां रहेगी। तुम अच्छी तरह सोच लो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। आजम की जिंदगी या फिर। सदीक अहमद ने मुकरू कहका लगाते जुमर के जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया था। सदीक भाई रहम करे, मैं आपकी भावज हूँ। वो एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ाई थी। अपने शौहर से बेवफाई की वो मुर्तकिब हो सकती थी, ना ही उसे मरते हुए देख सकती थी। अजीब दोरहा था। पुलिस रात पे खड़े उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जब भाई से कोई ताल्लुकदारी ही नहीं तो फिर तुमसे कैसा रिश्ता। देखो लड़की, आज के जमाने में कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। आजम ने भी तो तुम्हें पाने के लिए अपने खानदान को छोड़ दिया था, तो क्या तुम उसकी जिंदगी बचाने के लिए ये जरा सी कुर्बानी नहीं दे सकती। उन्होंने जैसे फरार के सारे रास्ते मसदूद कर दिए। वो जमीन पर बैठती चली गई थी और पिछले कई घंटों से एक ही पोजीशन में बैठी थी। आपने ऑपरेशन के लिए फीस जमा करा दी। डॉक्टर साहब राउंड पर आए तो उन्होंने बाहर आईसीयू के दरवाजे के पास दो जानों बैठी जुमर से पूछा। उसकी सांस रुक गई और उसने नफी में सर हिला दिया। देखिए जल्दी करें, मरीज के लिए एक एक लम्हा बहुत जरूरी है। वो इतना कहकर आगे बढ़ गए। जुमर गोया जलते कोयलों पर चलने लगी। बेबसी से डुबडुबाई निगाहों से सफेद पट्टियों में जकड़े अपने अजीज अज़जान शोहर को देखा। इन वाहिद में फैसला हुआ था। मुझे माफ कर देना आजम, मुझे इस खयानत की माफी दे देना, पर मैं तुम्हें यूं मरता हुआ भी नहीं देख सकती। उसने बेखबर सोए वजूद से सरगोशी की। सारी रात उसने जलते बलते गुजार दी थी। सर्दी में सारी रात मस्जिद के सहन में अकड़ू बैठने से उसकी कमर तख्ता हो चुकी थी। सारी रात उसने मस्जिद के सहन में रोते और फरियाद करते गुजारी थी। सुबह के फूटने पर उसने जैसे खुद को और हर अनहोनी के लिए तैयार कर लिया था। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा करके आजम की तरफ जाने की कोशिश की थी, पर उसके कदम चलने से इनकारी थे। वो किस मुंह से उसके सामने जाएगी और किस तरह उसकी शिकवा कना नजरों का सामना कर पाएगी। उसने जैसे खुद को हर तरह के हालात के लिए तैयार कर लिया था। उसने ठंडी आह भरकर आसमान की जानिब निगाह दौड़ाई थी। वो जब कॉरिडोर में आई तो वहाँ गैर मामूली रश था। जुमर को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। उसने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया था। खौफ उसके वजूद के हर अज़ू से आया था। आजम, उसके मुंह से जैसे करलाहट की सूरत निकला। मैं तुमसे अपनी मोहब्बत नहीं निभा पाई। उसने वहीं दीवार से टेक लगाए आजम से माफी मांगी। कॉरिडोर से अब रश छटने लगा। लगता था कि कोई इमरजेंसी आई थी। अरे आप इधर खड़ी हैं, अंदर चलें। आपके मरीज को होश आ गया है। रात उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया था। उसने आंख उठाकर देखा, एक नर्स उसके करीब खड़ी कह रही थी। उसने गायब दिमागी से नर्स को देखा। उसे लगा उसे कोई गलत फहमी हुई थी। तुम किसकी बात कर रही हो? उसके मुंह से सरसराते हुए निकला। आप मिसिस आजम है ना? उसका सर बेसाख्ता अस्बात में हिल गया। नर्स नरमी से मुस्कुराई थी। मैं आपके शौहर ही की बात कर रही हूँ। उनका ऑपरेशन कामयाब रहा। अब वो होश में हैं और आपको बुला रहे हैं। आप रात भर कहाँ थी? नर्स के आखिरी सवाल पर वो गड़बड़ा गई थी। क्या सारी दुनिया को खबर हो गई कि जुमर आजम किस आजमाइश से दो चार की गई थी और वो उस पर पूरी भी उतरी या नहीं?
वो मरे मरे कदम उठाती दिमाग में कलबलाते सवालों को नजर अंदाज किए अंदर कमरे में आई थी। सामने ही उसकी जिंदगी सांस लेती नजर आ रही थी। आजम उसे देखकर नरमी से मुस्कुराए। वो रोते हुए तड़प कर आजम के सीने से लगना चाह रही थी कि तीसरी आवाज ने उसे टोक दिया। अरे आओ जुमर, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। उसने लम्हे भर को देखा और गंग रह गई। सामने ही हंसते मुस्कुराते सदीक अहमद बैठे थे और उससे बेहद शफकत से मुखातिब थे। उसकी सांस हलक में अटक गई। वो यहाँ पर क्यों मौजूद थे? मुबारक हो, आजम को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। शायद तुम जैसी नेक और इज्जतदार बीवी की दुआ ही उसकी जिंदगी बचा गई है। वो बहुत नरमी और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखे गोया हुए थे। जुमर ने बेसाख्ता चौंक कर उन्हें देखा था, जिनके चेहरे पर बेहद हलावत और शफकत बिखरी थी। खुश रहो आजम, तुम्हारा इंतखाब लाजवाब था। उन्होंने आगे बढ़कर आजम का हाथ थामते हुए कहा। जुमर उलझ कर रह गई थी। उनका बदला रवैया उसके लिए हैरत का बाइस था। मैं मानता हूँ मैं गलत था। एक शरीफ औरत के लिए उसकी नस्वानियत के खजाने की हिफाजत अहम तरीन शय होती है और यही चीज उसे इज्जतदार बनाती है। सिर्फ आला खानदान और हसब नसब मायने नहीं रखते। मुझे तुम्हारी पसंद पर फख्र है। उन्होंने मोहब्बत पाश निगाहों से अपने भाई को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर आज बड़ी असुदा मुस्कुराहट फैली थी, मगर जुमर से उनका बदला बदला पहलिया भिजवाता लहजा हजम नहीं हो पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उनके पीछे पीछे कमरे से निकल आई। वो उसे देखकर नरमी से मुस्कुरा दिए। उन्हें जुमर के चेहरे पर फैली उलझन वाज़े नजर आ रही थी। आजम मेरा सगा भाई है, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा घिनौना फेल अंजाम दे सकता हूँ? उन्होंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो जुमर का सर झुक गया। इज्जत पर जान देने वाले कभी किसी की इज्जत से नहीं खेला करते, ये बात हमेशा याद रखना। उन्होंने मजीद कहा, मुझे आजम से कई गिले थे जो कल रात तुम्हारे ना आने की वजह से खत्म हो गए। वो सांस रोके हैरत से उन्हें तक रही थी। कल की रात मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरी जुमर, कहीं तुम आजम की मोहब्बत में मेरे पास इस शर्त की पासदारी के लिए ना आ जाओ। ये खौफ सारी रात मुझे ऑक्टोपस की तरह जकड़े हुए था। मैं हर गुजरते पल बड़ी शद्दोमत से तुम्हारे ना आने की दुआ मांगता रहा। मैंने तुम्हें बहुत कड़ी आजमाइश में मुब्तला किया था और मुझे ये डर था कि तुम आजम की जिंदगी की खातिर अपनी इज्जत से भी खेल ना जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मोहब्बत अपनी जगह मगर औरत की इज्जत सबसे पहले होती है। इसे किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत को खिलौना नहीं समझना चाहिए। भले तुम्हारा वो काम एक महबूब शोहर की जिंदगी के लिए गिरा देता, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर तुम आ गई तो फिर किसी भी कीमत पर तुम्हें आजम की जिंदगी में नहीं रहने दूंगा। और मुझे फख्र है कि तुमने अपनी इज्जत को मुकद्दम समझा। कल रात मैंने तुम्हें अस्पताल की मस्जिद में आजम के लिए रोते देखा, गिड़गिड़ाते देखा और लम्हा लम्हा अपने भाई की पसंद पर फख्र किया। तुम्हें इस कदर जहनी अजियत से दो चार किया, इसके लिए मुआजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था और नहीं चाहता था कि कोई भी इन मुश्किलात में तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाता। और मुझे यकीन है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी मर्द तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। औरत को इतना ही मजबूत होना चाहिए। इतना कहकर वो उसका सर थपथपा कर चले गए। जुमर के कदम बेसाख्ता अल्लाह के घर की जानिब गामजन हो गए। अल्लाह ने उसकी मोहब्बत की लाज रखी थी, उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। वो अपने शौहर से खयानत की मुर्तकिब नहीं हुई थी। वह सुरखरू ठहरी थी। सद शुक्र वो किसी कमजोर लम्हे की जद में आने से बच गई थी। सो सजदा शुक्र तो उस पर वाजिब हो गया था।